Very good morning to all of you. So, students, today we are going to cover the new topic that is about IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority. First is about the meaning. Insurance Regulatory and Development Authority is the national regulatory body for insurance industry, both life and non-life insurance companies under the auspices of Government of India situated at Hyderabad. So this is basically the regulatory authority जो कि सारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। तो उस जो गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई हुई है एक पूरी कंट्री की इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए, उसको हम कहते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IRDA was established by an act enacted in Indian Parliament known as IRDA Act 1999 and was amended in 2002 to incorporate some emerging requirements as well as to overcome some deficiencies in the entire process. So this organization was established, this authority was established in 1999, and time to time certain amendments were made so according to the need of the time. Next is about the main mission of the IRDA. So main mission is first to protect the interest of the policyholder, to promote, regulate and ensure orderly growth of the insurance industry and for matters connected therewith or incidental thereto. And next is connection of insurance business and across India with an ethical manner. So basically three mission ये लेके चलते हैं. फर्स्ट इज जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को उनको प्रोटेक्ट करना है, सारी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करना है, उसको कंट्रोल करना है। एंड थर्ड वन इज उन्होंने कोई कोड ऑफ कंडक्ट दिए हुए हैं ताकि एथिकल तरीके से इंश्योरेंस बिजनेस को ओवर द कंट्री कंडक्ट किया जा सके। नेक्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल रिलेटिंग टू इंश्योरेंस। फर्स्ट इज utmost good faith, duty of disclosure, material facts, representation, breaches of utmost good faith, void, voidable and unenforceable contract, case laws and court decision. So according to this principle क्या क्या ड्यूटीज बनती हैं, कौन से मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करने चाहिए वाइल डूइंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस, ये इसमें बताया जाएगा। कौन से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हैं, कौन से वॉइडेबल हैं, ये सारी चीजें इसमें सारे फैक्टर्स इसमें क्लियर किए जाते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, conditions fulfilling requirement of an insurable interest, person having insurable interest and nature of रिलेशनशिप। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है, जो पर्सन पॉलिसी ले रहा है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए, या मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस, ये सारे इस प्रिंसिपल में बताए गए हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी, डेफिनेशन प्रिंसिपल, ओनली वन आइडेमनिटी फॉर अ सिंगल इंसिडेंट, आइडेमनिटी मीन्स टू कवर द लॉस। तो प्रिंसिपल इंश्योरेंस जो है बेसिकली इस प्रिंसिपल पे कंडक्ट किया जाता है, द मेन पर्पस इज टू कवर द लॉस ऑफ द अनदर पर्सन। नेक्स्ट इज सब्रोगेशन एंड contribution, importance, how, when it arise and operates, case laws and court decisions, proximate and probable cause of loss, doctrine of proximate cause, मतलब जो आपका लॉस होना चाहिए दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रॉक्सिमेट, दैट शुड बी अ प्रॉक्सिमेट लॉस। उसके साथ केस लॉज या उसके कोर्ट डिसीजन क्या है, ये इस प्रिंसिपल में बताए जाते हैं। नेक्स्ट इज रोल एंड ड्यूटीज ऑफ IRDA। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ IRDA एक्ट 1999 lays down the duties, powers and functions of IRDA. Subject to the provisions of this act and any other law for the time being in force, the authority shall have the duty to regulate, promote and ensure orderly growth of the insurance business and reinsurance business. तो सबसे पहली IRDA की ड्यूटी बनती है कि जितना भी इंश्योरेंस बिजनेस एक कंट्री में कंडक्ट हो रहा है उसको रेगुलेट करना है, उसको प्रमोट करना है और उसकी ग्रोथ करनी है। Next is without prejudice to the generality of the provisions contained in subsection 1, the powers and functions of the authority shall include issue to the applicant a certificate of registration, renew, modify, जितने भी एक इंश्योरेंस कंपनी को डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स चाहिए रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी, या किसी का लाइसेंस जो है वो कैंसिल करना है, रिन्यू करना है, ये सारे अथॉरिटी IRDA के पास है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स in matters concerning assigning of policy, nomination by the policy holders, insurable interest, जितने भी इंश्योरेंस के साथ रिलेटेड पॉलिसी होल्डर्स के मैटर्स के साथ रिलेटेड
पॉलिसी असाइन करना, उनके रिगार्डिंग रूल्स बनाना, ठीक है, ये सारे रूल्स बनाना, सरेंडर वैल्यू डिसाइड करना, इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट डिसाइड करना, ये सारा किसका काम है? आईआरडीए का काम है। स्पेसिफाइंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड पर्टिकुलर ट्रेनिंग टू द इंश्योरेंस एजेंट्स। और जितने भी इंश्योरेंस एजेंट्स हैं मार्केट में, उनको रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ आईआरडीए। स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स। जब किसी का कोई लॉस हो जाता है, लॉस असेसर्स अपॉइंट किए जाते हैं लॉस की वैल्यू एनालाइज करने के लिए, ठीक है, वो अपॉइंट आईआरडीए ने करने हैं। प्रोमोटिंग एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, promoting and regulating professional organization connected with the insurance and reinsurance business, levying fees लगाना, ठीक है, and other charges for carrying out the purpose of this act. कॉलिंग फॉर जो आईआरडी है, दे कैन कॉल फॉर एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जाके उनके डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, या ऑडिट कर सकते हैं। कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ रेट्स, या वो एक पैरामीटर डिसाइड कर सकते हैं या एक बेंचमार्क डिसाइड कर सकते हैं, व्हाट शुड बी द इंश्योरेंस रेट्स, उसके क्या क्या एडवांटेजेस होने चाहिए, उसके क्या क्या पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, ये सब वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्पेसिफाइंग द फॉर्म एंड मैनर इन विच बुक्स एंड अकाउंट्स, एक पर्टिकुलर सिस्टम बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर पैटर्न में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, किस जगह पे इंश्योरेंस फंड्स को आगे री इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। रेगुलेटरिंग मेंटेनेंस ऑफ मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, कैसे मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी को एडजस्ट करना है कंपनीज ने, कैसे अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन इंश्योरर्स तो उसको रिजॉल्व करना है। इंश्योरर्स एंड इंटरमीडियरीज के बीच में डिस्प्यूट्स अगर हो जाते हैं, मीन्स इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस एजेंट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, या जिस बंदे की आपने इंश्योरेंस की है उसको कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो उसे कैसे रिजॉल्व करना है। सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, specifying the percentage of the premium income of the insurer to finance schemes for promoting and regulating professional organizations। और जितना भी एज इनकम इंश्योरेंस कंपनीज ले रही हैं उनमें से कितना उन्हें आगे फर्दर इन्वेस्ट करना है रिगार्डिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में। स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, और हर एक कंपनी के लिए एक परसेंटेज डिफाइन की जाती है कि कितना परसेंट पैसा वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस का ले सकते हैं, कितना परसेंट जनरल इंश्योरेंस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पैसा ले सकते हैं। तो वो परसेंटेज कौन स्पेसिफाई करता है? आईआरडीए स्पेसिफाई करता है, एंड सम सच अदर पावर्स व्हिच मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? हाँ जी, अच्छा ठीक है बेटा, चलो ठीक है, हाँ ठीक है। So according to Section 4 IRDA Act 1999, Insurance Regulatory Authority specify the composition of authority. So authority में basically 10 members होते हैं, a team consisting of, जिसमें एक chairman होगा, 5 whole time members होंगे, 4 part time members होंगे, and all are appointed by the government of India. Next is establishment of office with effect from such date as the central government may by notification appoint, there shall be establishment for the purpose of this act. So इस particular the insurance regulatory and development authority, तो एक particular act के अंदर with the notification of central government इस authority को establish किया जाता है। The authority shall be a body corporate by the name aforesaid, have perpetual succession, और इसको as a body corporate लिया जाएगा। एक कंपनी के जो रूल्स होते हैं वो इस पे अप्लाई होंगे। It should have a perpetual succession, it should have a common seal, it has the right to acquire, hold and dispose of property। जो भी एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट्स होते हैं वो सारे इस ऑर्गेनाइजेशन को राइट्स अवेलेबल होंगे। The head office of the authority shall be at the same place as the central government may decide from time to time। तो जिस जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उस जगह पे अथॉरिटी का हेड ऑफिस होगा। द अथॉरिटी में एस्टैब्लिश ऑफिसेज एट अदर प्लेसेस इन इंडिया, और बाकी प्लेसेस पे भी ऑफिसेज एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। टेन्योर ऑफ ऑफिस,
The chairman and every other whole-time member shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office and shall be eligible for reappointment. So basically जब भी चेयरपर्सन जो है और अदर जो फुल टाइम मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, उनका टेन्योर ऑफिस का होता है फॉर 5 years, मतलब 5 सालों के लिए उन्हें अपॉइंट किया जाता है. आफ्टर 5 years उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं, provided that no person shall hold office as a chairperson after he has attained the age of 65 years. For और जो chairperson है उसके लिए maximum age जो है काम करने के लिए that is 65 years. Provided further that no person shall hold office as a whole time member after he has attained the age of 62 year. और जो सब members हैं जो whole time officers की तरह काम कर रहे हैं वो maximum 62 years की age तक काम कर सकते हैं. A part-time member shall hold office for a term not exceeding 5 years from the date on which he enters upon his office. जो पार्ट टाइम मेंबर्स है वो भी 5 years के लिए एक ड्यूरेशन में 5 years के लिए काम कर सकते हैं. नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, अ मेंबर में relinquish his office by giving in writing to the central government notice of not less than 3 months. तो अगर किसी भी मेंबर को जॉब छोड़नी है, उस ऑफिस को लीव करना है, तो पहले वो 3 months इन एडवांस नोटिस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसके बाद वो जॉब छोड़ सकते हैं. टू बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन. और सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है, वो अगर किसी को भी चाहे तो वो इस ऑफिस से वो रिमूव कर सकते हैं. Removal from office. So next topic is about removal. The central government may remove from office any member. वो किसी भी person को remove कर सकते हैं office से who is or at any time has been adjudged as an insolvent. जो insolvent declare हो जाए उसको remove किया जा सकता है. He has been physically और mentally incapable अगर हो गया कोई person उसको वो replace कर सकते हैं. He has been convicted by an offense या उसके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसने कोई ऑफेंस किया है, उस कारण वो उस पर्सन को जॉब से निकाल सकते हैं. He has acquired any financial or other interest as likely to be to affect prejudicially his function as a member या उसने कोई मॉनेटरी कोई ऐसा बेनिफिट लिया है जो कि उसकी जॉब के साथ इनकंसिस्टेंट था और उसे में जॉब में रहते हुए वो बेनिफिट नहीं लेना चाहिए था. He has so abused his position as to render his continuation in office detrimental to the public interest. या वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता है जो कि आम जनता के लिए नुकसानदायक है. No such member shall be removed under section D or clause E of subsection 1 unless he has given a reasonable opportunity of being heard in the matter. तो जब भी किसी पर्सन के ऊपर कोई एलिगेशन ऐसा लगा के उसे ऑफिस से निकाला जाएगा, सब उसे एक मौका उस अपनी बात कहने का an opportunity of being heard जरूर दिया जाएगा. So this was the whole topic for today. Next time we will cover the rest topics of related with the IRDA. Thank you.